Hello students, good morning. Now we'll be doing one of the most important chapter, branch accounts. I've observed one thing in this chapter, students are always in confusion. What exactly has to be done in branch accounts? The word itself says branch accounts. So, are we accounting in the books of branch or are we doing accounting in the books of HO? You are doing accounting in whose books? There is always a confusion among the students. Till the end, they have not understood what has to be done. Now, remember, this is one of the most important chapter and the easiest chapter. If your concepts are clear, then trust me, believe me, you will find this chapter very easy. आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा. अब सबसे पहले ब्रांच अकाउंट्स. हम ब्रांच अकाउंट्स ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? ये चैप्टर में हम ब्रांच का अकाउंटिंग पूरा करेंगे. बट इन हुज बुक्स आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड? आप किसकी बुक्स में लिखने वाले हो? ब्रांच के खुद के बुक्स में लिखने वाले हो या हेड ऑफिस के बुक्स में लिखने वाले हो? रिमेंबर, इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है. हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन किए गए, वो हेड ऑफिस लिखेगा. तो हेड ऑफिस, who is maintaining this books of accounts? Head office. Head office is going to record in its books of accounts. So remember, accounting आप किसकी बुक में कर रहे हो? Accounting आप head office की बुक में कर रहे हो. You are doing accounting in the books of head office. This is the first and the most important thing. So make one thing very clear. Accounting takes place in whose books of accounts? In books of head office or in the books of branch. You are doing accounting. आप accounting कर रहे हो head office की books में. So first thing, भले चैप्टर का नाम ब्रांच अकाउंट्स है, लेकिन आप accounting किसके बुक्स में कर रहे हो? हेड ऑफिस की बुक्स में कर रहे हो. Now here today I'll be covering the first method, that is the data system. In the later sessions I will be covering the stock data system also, but in this session I will cover with you the data system. Now what is data system? क्या होता है data system में? How will head office record the transactions in its books of accounts related to branch? What is this data system? Let's understand step by step. Now सबसे पहले again make clear, the transaction are recorded. आप जो भी लिख रहे हो वो हेड ऑफिस की बुक्स में लिख रहे हो. यू आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. नाउ हेड ऑफिस है और एक ब्रांच है. ये ब्रांच क्या होता है? इट इज वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द हेड ऑफिस. लाइक हाउ वी सॉ कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में क्या होता है? देयर इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. बट यहां पे क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द हेड ऑफिस. मीन्स हेड ऑफिस को वहां पे एजेंट या कोई नहीं रखना है, हेड ऑफिस को खुद को ही वहां से ऑपरेट करना है. तो उनका एक ऑफिस है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफिस. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रांच ऑफिस. अब ये ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं? हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई करेगा, कैश, हेड ऑफिस विल गिव कैश टू ब्रांच फॉर द एक्सपेंसेस. हेड ऑफिस कैन इनकर द एक्सपेंसेस डायरेक्टली. ब्रांच विल सेल द गुड्स. Branch will give money to head office after selling the goods. Branch will sell goods to customers. Customers will give money to branch. Branch will give to head office. So जो भी transactions हो रहे वो हमको लिखने हैं. Now the very first system that we will be studying over here is the data system. Which system? Data system. What happens in case of data system? So is there any other system? Yes, there is one more system, that is stock data system. Today we will be covering only data system. यहाँ पे हम सिर्फ data system को cover कर रहे हैं. In this session we will be discussing on data system. Now again I reiterate, आप किसकी बुक्स में लिख रहे हो? हेड ऑफिस. Think only from head office point of view. आप सिर्फ हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. सोचो हेड ऑफिस है. हेड ऑफिस कहाँ पे? हेड ऑफिस इज इन मुंबई. लेट्स से हेड ऑफिस कहाँ पे? आपकी मुंबई में. और उनका ब्रांच है.
let's say where is the branch? Let's say branch is in Delhi. So there is a head office and there is a branch. हेड ऑफिस मुंबई में, ब्रांच दिल्ली में. अब कौन सी सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? विच सिस्टम आर वी गोइंग टू स्टडी ओवर हियर? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ सिस्टम टर्म्ड एज डेटा सिस्टम. वी विल बी स्टडीइंग समथिंग कॉल्ड एज डेटा सिस्टम. सो यहाँ पे हम कौन सी सिस्टम करने वाले हैं आज? आज हम यहाँ पे डेटा सिस्टम करने वाले हैं. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डेटा सिस्टम? रिमेंबर, इन केस ऑफ डेटा सिस्टम, हेड ऑफिस जो है ना, हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मानता है. हेड ऑफिस ब्रांच को क्या मानेगा? ब्रांच को अपना डेटर मानता है. हेड ऑफिस विल कंसिडर ब्रांच एज इट्स डेटर. सर ऐसा क्यों होता है? हेड ऑफिस क्यों ब्रांच को डेटर मानता है? एक सिंपल आंसर मैं देता हूं आपको इसके लिए. डेटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर? डेटर का मतलब ये होता है कि हमने उसी को कुछ सेल किया है और उसके पास से हमको पैसा लेना है. वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम देम. हु आर डेटर्स? पर्सन्स फ्रॉम हुम वी हैव टू रिकवर द मनी. थिंक फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू. हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10 लाख के गुड्स दिए. हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने के गुड्स दिए? 10 लाख के. हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10 लाख के गुड्स दिए, तो हेड ऑफिस को ब्रांच से कितना पैसे लेने हैं? हेड ऑफिस को ब्रांच से 10 लाख रुपए लेने हैं. करेक्ट? सो हेड ऑफिस हैज टू रिकवर मनी फ्रॉम ब्रांच. तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या बोलेगा? हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर बोलेगा. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम द ब्रांच. सो दिस इज द आइडियोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड इन द डेटर सिस्टम. हेड ऑफिस ने ब्रांच को 15 लाख के गुड्स दिए. हेड ऑफिस ने ब्रांच को 15 लाख के गुड्स दिए. तो अभी हेड ऑफिस को ब्रांच के पास से कितना पैसा लेना है? They have to take 15 lakh rupees from branch. The persons from whom we have to recover the money are termed as debtors. तो हेड ऑफिस को ब्रांच के पास से पैसे लेने कितने? 15 लाख रुपीस. Then in that case what happens? Then in that case head office will term branch as what? Head office will term branch as debtors because they have to recover money from whom? They have to recover money from branch. So this is the ideology that has been used. हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, कस्टमर के पास से हमको पैसे लेने. सेम में हेड ऑफिस क्या बोलता है? हेड ऑफिस बोलता है कि मैंने ब्रांच को सप्लाई किया गुड्स, मेरे को ब्रांच के पास से पैसे लेने, तो ब्रांच क्या बन गया? मेरा डेटर. सो दिस इज द आइडिया दैट इज बीन यूज्ड इन दिस सिस्टम, डेटा सिस्टम. सो what happens in case of data system? What is the idea behind the data system? Idea behind the data system is head office is going to consider branch as its debtor. हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर मानता है. एंड हेड ऑफिस will give cash, head office will give furniture, head office will give other assets, head office will supply goods. So for all that, head office has to recover money from the branch. So head office will term branch as its debtor. Head office will consider branch as its debtor, and that is the reason why we call this system as data system. ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ये सिस्टम को हम बोलते हैं डेटा सिस्टम. सो द आइडिया बिहाइंड कॉलिंग दिस सिस्टम डेटा सिस्टम इज हेड ऑफिस कंसिडर्स ब्रांच एज इट्स डेटर. Are you understanding what idea is behind this? I'll come to the accounting very soon. But एक बार आपके लॉजिक्स क्लियर कर दो कि आपको करना क्या है, आप करने वाले क्या हो यहाँ पे. आप सबसे पहले अकाउंटिंग किसके बुक्स में करोगे? हेड ऑफिस की बुक्स में. सेकेंड, हेड ऑफिस ब्रांच को क्या ट्रीट कर रहा है? हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर ट्रीट कर रहा है. इसलिए ये सिस्टम का नाम क्या हो गया? इसलिए ये सिस्टम का नाम हो गया डेटर सिस्टम. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ वी गो टू द अकाउंटिंग पार्ट. ये तो हमने देख लिया. ओके, नाउ वी गो टू द अकाउंटिंग पार्ट. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अकाउंटिंग? नाउ जस्ट लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. व्हेन वील डू द अकाउंटिंग, remember head office and branch are there. All the transactions, listen carefully, the most important thing, all the transactions between head office and branch will be recorded. So आप किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करने वाले हो? आप हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करोगे. हेड ऑफिस की बुक्स में क्या अकाउंटिंग करोगे? ट्रांजैक्शंस.
कौन से ट्रांजैक्शंस आप अकाउंट करोगे? आप जो भी ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करोगे। सर हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में? यस। हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस ने ब्रांच स्टार्ट कर दी दिल्ली में, तो हेड ऑफिस ने 5 लाख का फर्नीचर दे दिया उनको। इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, इट विल बी रिकॉर्डेड। हेड ऑफिस ने 10 लाख रुपया कैश दिया उनको, दिस विल बी रिकॉर्डेड। हेड ऑफिस ने 15 लाख का गुड्स दिया उनको, दिस विल बी रिकॉर्डेड। दीज आर द ट्रांजैक्शन बिटवीन whom? These are the transactions between head office and branch. हेड ऑफिस ने पेटी कैश के लिए कुछ पैसे दे दिया उनको, that will also be accounted. So what do you account over here? You will be accounting firstly all the transactions that are taking place between head office and branch. Transactions are started from head office and it ends at branch. First thing. मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आपका पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है। First thing you studied, you are doing accounting in the books of head office. Second thing you understood, this system is called as debtor system. Third thing, what are you going to account? In that, the very first thing you are going to account is the transactions that are taking place between head office and branch. अभी आपके दिमाग में ऐसे क्वेरी आएगी, सर हेड ऑफिस ने तो ब्रांच को दिया बट ब्रांच भी तो हेड ऑफिस को देगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रांच को कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिल गए, ब्रांच ने कहा सर ये गुड्स डिफेक्टिव है, हेड ऑफिस को वापस दे दिए। तो ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहां से हुआ? ब्रांच से। एंड कहां पे हो रहा है? एचओ पे। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन हुम? दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ। ब्रांच ने गुड्स सेल किए, ब्रांच को 25 लाख रुपए मिले, ब्रांच रिसीव 25 लाख रुपीस। ब्रांच क्या करेगा? वो 25 लाख रुपीस, ब्रांच वो 25 लाख रुपीस एचओ को रेमिट कर देगा, दे देगा, उसको बोलते हैं रेमिट, रेमिटेंस। रेमिटेंस मींस ब्रांच एचओ को पैसे देता है, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। So what happens over here? Over here we see the second set of transactions that are taking place between whom? The second set of transactions that are taking place between branch and HO. Again I am saying हम transactions किसके बीच में लिखने वाले हैं? HO and branch, branch and HO. सर अगर ब्रांच ने 10 लाख के गुड्स सेल किए, क्या वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? नो, वी विल नॉट रिकॉर्ड दैट। लेकिन जब ब्रांच वो पैसे एचओ को रेमिट करेगा, लेट्स से ब्रांच ने 25 लाख का गुड्स सेल किया, विल दैट बी अकाउंटेड? नो। बट जब ब्रांच वो 25 लाख रुपीस एचओ को देगा, विल दैट बी अकाउंटेड? यस, दैट विल बी अकाउंटेड। सी अगेन आई एम सेइंग ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्टली बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, ब्रांच एंड एचओ। ब्रांच आउटसाइडर से डील कर रहा है, वो नहीं लिखेंगे। आउटसाइडर ब्रांच के साथ डील कर रहा है, वो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? एचओ और ब्रांच के ट्रांजैक्शंस। रिमेंबर दिस थिंग यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड। यू आर नेवर गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट ब्रांच इज डूइंग विद आउटसाइडर, व्हाट आउटसाइडर इज डूइंग विद ब्रांच। यू आर कंसर्न्ड विद हेड ऑफिस एंड ब्रांच। नाउ सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कस्टमर जो था वो दिल्ली में है, ब्रांच ने उसको 5 लाख के गुड्स सेल किए। लिसन दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई। ब्रांच कहां पे है? दिल्ली। ब्रांच ने एक कस्टमर है, लेट्स से मिस्टर एक्स। ब्रांच ने मिस्टर एक्स को 10 लाख के गुड्स सेल किए। ब्रांच इज सेलिंग गुड्स ऑफ व्हाट अमाउंट? ब्रांच इज सेलिंग गुड्स ऑफ 10 lakhs टू मिस्टर एक्स। किसने सेल किया? ब्रांच ने। मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कहां पे रहते हैं? लेट्स से मिस्टर एक्स स्टेज इन गोवा। वेयर इज मिस्टर एक्स स्टेइंग? मिस्टर एक्स स्टेज इन गोवा। गुड्स कहां से सेल हुए? दिल्ली से गोवा सेल हो गए। अभी मिस्टर एक्स क्या कर सकता है? मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है। मिस्टर एक्स हैज टू पे टू ब्रांच। लिसन केयरफुली, हेड ऑफिस है, ब्रांच है दिल्ली में। मिस्टर एक्स को किसने गुड्स सेल किया है? मिस्टर एक्स को ब्रांच ने सेल किया है गुड्स। सो द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन ब्रांच and X of Goa. Will this be accounted in the books of head office? No, this will not be accounted. ब्रांच ने किसको सेल किया गुड्स? ब्रांच ने मिस्टर एक्स को गोवा में सेल कर दिया गुड्स। फाइन। अब मिस्टर एक्स को क्या करना है? मिस्टर एक्स को दिल्ली ब्रांच को पैसा देना है। He has to pay money, that is called as remittance. So Mr. X will do remittance to whom? Mr. X will do remittance to branch of Delhi. But
Mr. X says, instead of going to Delhi and making the payment, he was there in Mumbai. So Mr. X ने क्या किया, दिल्ली पैसे भेजने की जगह उसने डायरेक्ट हेड ऑफिस को दे दिए पैसे. सी, ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ, दिल्ली ब्रांच और मिस्टर एक्स के बीच में. मिस्टर एक्स has to give money to whom? Mr. X has to give money to Delhi. Delhi branch has to give money to head office. X ने ये पैसे डायरेक्टली किसको दे दिए, X ने ये पैसे डायरेक्टली he is giving this money to, X is giving this money to head office. अब सोचिए जरा, ये क्या होना चाहिए था, X of Goa will give money to Delhi branch, Delhi branch will give money to head office. अब X ने डायरेक्टली पैसे किसको दे दिए, हेड ऑफिस. तो ये इस तरह का ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हेड ऑफिस एंड आउटसाइडर. लिसन केयरफुली, ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हेड ऑफिस एंड आउटसाइडर, बट इट इज इन रिस्पेक्ट विथ ब्रांच. ये जो ट्रांजैक्शन गोवा के बंदे के साथ हो रहा है, मिस्टर एक्स के साथ जो हो रहा है ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस का, दिस पर्सन इज गिविंग मनी टू हेड ऑफिस, but this person is entering into a transaction with head office in respect of Delhi branch. Means he should have given the money to Delhi branch has given money to head office. Instead of that, Goa से सीधे पैसे आ गए मुंबई. So will this be accounted? Yes, this will be accounted in the books of accounts. So this is a type of transaction which takes place between between HO and outsider. तो HO और गोवा वाले X के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, बट ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली ब्रांच. देयरफॉर इट विल आल्सो बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. कौन से ट्रांजैक्शंस आपको लिखने हैं, हेड ऑफिस एंड ब्रांच एंड हेड ऑफिस. एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस एंड आउटसाइडर, बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांच. अगर ये ट्रांजैक्शन गोवा वाले एक्स के साथ हेड ऑफिस का हो रहा है, which is in respect with Delhi branch, so even that will be accounted in the books of head office. So remember these three important points while doing accounting in the books of head office with respect to branch. 1. Transactions between head office and branch will be accounted. Second, transactions between branch and head office will be accounted. Third, transaction between head office and outsiders with respect to branch will be accounted. So these are the basics which you should remember. Kindly make important notes also while I'm saying, it will be useful to you when you revise. So first chapter का नाम है branch accounts. Second, आप accounting किसके books में कर रहे हो, head office के books में कर रहे हो. थर्ड, ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये सिस्टम को हम डेटा सिस्टम बोलते हैं. क्यों डेटा सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज हेड ऑफिस इज ट्रीटिंग ब्रांच एज इट्स डेटर. हेड ऑफिस इज ट्रीटिंग ब्रांच एज इट्स डेटर. फोर्थ पॉइंट, आपको अकाउंटिंग करना है. कौन से ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करनी है आपको, ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ, एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड आउटसाइडर्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच. अगर आपको इतने बेसिक्स क्लियर है, ट्रस्ट मी, आपको अकाउंटिंग बहुत सिंपल लगेगा. दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स व्हिच यू शुड एक्चुअली नो बिफोर स्टार्टिंग एन अकाउंटिंग फॉर ब्रांच. आई होप these things are clear. Now I will move to the accounting. So first I will explain you the entire format. एक बार आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको काफी इजी लगेगा. Now अकाउंटिंग किसकी बुक्स में हो रही है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. रिमेंबर, आप अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हो, हेड ऑफिस. दिमाग में डाल दो, आपके हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है. भले चैप्टर का नाम ब्रांच अकाउंट है, अकाउंट्स आर बीन रिटन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. जैसे हेड ऑफिस के बुक्स में बहुत सारे अकाउंट रहेंगे, ए बी सी डी, वैसे एक अकाउंट कौन सा है उनकी बुक्स में, ब्रांच. दिल्ली ब्रांच रहेगा तो आगे लिखना दिल्ली ब्रांच, गोवा ब्रांच रहेगा तो गोवा ब्रांच, दुबई ब्रांच रहेगा तो दुबई ब्रांच, whatever is there you record. So, but in the format I'm just taking as branch account. Now, first we have to record what, the opening balance. If you recall single entry में मैंने आपको डेटर्स
के बारे में बताया था। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस सेम साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड। दिस इज द फंडामेंटल रूल विच यू हैव टू यूज थ्रू आउट योर अकाउंटिंग लाइफ, रिमेंबर। तो सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। वी आर फॉलोइंग विथ सिस्टम, वी आर फॉलोइंग डेटा सिस्टम। कौन से सिस्टम फॉलो कर रहे हो आप? डेटा सिस्टम। डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पे? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन means head office has to recover from branch this balance amount. हेड ऑफिस को ब्रांच से क्या लेना है? ये बैलेंस अमाउंट हेड ऑफिस को ब्रांच से लेना है। क्या क्या लेना है हेड ऑफिस को ब्रांच के पास से? हेड ऑफिस को ब्रांच के पास से स्टॉक का पैसा लेना रहेगा। हेड ऑफिस हैज गिवन स्टॉक, सो हेड ऑफिस हैज टू रिकवर फ्रॉम ब्रांच व्हाट? हेड ऑफिस हैज टू रिकवर फ्रॉम ब्रांच द स्टॉक अमाउंट। सेकेंड, हेड ऑफिस ने कुछ कैश दिया रहेगा, हेड ऑफिस को ब्रांच के पास से कैश भी लेना है। थर्ड, हेड ऑफिस ने कुछ फिक्स असेट्स दिए रहेंगे, फर्नीचर, प्रीमाइसेस एक्सेट्रा, सो हेड ऑफिस विल हैव टू टेक दिस फिक्स असेट्स आल्सो फ्रॉम द ब्रांच। और ब्रांच के पास ये जो भी असेट्स है, जो भी वैल्यू है, हेड ऑफिस हैज टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम द ब्रांच। Then there may be some prepaid expenses. There may be something called as debtors. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है, सर what is this happening? Why have you written debtors over here? Deliberately मैंने लास्ट में लिखा है ये debtors. सुनो ध्यान से, हमने हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग की है। हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मान रहा है। हेड ऑफिस इज ट्रीटिंग ब्रांच एज इट्स डेटर। अब जो ब्रांच है ना, ब्रांच वो क्या करता है? गुड्स बेच रहा है। ब्रांच क्या करेगा? गुड्स सेल कर रहा है। तो जो ब्रांच के कस्टमर्स है, ब्रांच ने गोवा के मिस्टर एक्स को सेल किया है गुड्स, दुबई के मिस्टर वाई को सेल किया है गुड्स, हैदराबाद के मिस्टर जेड को किया है सेल्स। सो दिस ऑल बिकम्स डेटर, दिस ऑल आर द कस्टमर्स। तो यहां पे जो मैं डेटर्स लिख रहा हूं, ये जो डेटर्स मैंने लिखा हुआ है यहां पे, व्हाट आर दीज डेटर्स? ये जो यहां पे डेटर्स लिखा हुआ है ना, ये ब्रांच के कस्टमर्स हैं जो ब्रांच को पैसा देंगे और फिर हेड ऑफिस हैज टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम द ब्रांच। सो यहां पे लिंक क्या है? हेड ऑफिस को ब्रांच से रिकवर करने पैसे, और ब्रांच किसके पास से रिकवर करेगा? डेटर्स के पास से, जिसको ब्रांच ने सेल किया है। हेड ऑफिस के लिए डेटर कौन है? ब्रांच। और ब्रांच के लिए डेटर्स कौन है? जिसको ब्रांच ने एक्चुअली सेल किया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सर यहां पे भी डेटर्स लिख रहे हो आप सिस्टम का नाम भी डेटा सिस्टम लिख रहे हो, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। अगेन आई विल से, सिस्टम का नाम है डेटा सिस्टम, और यहां पे भी मैंने डेटर्स लिखा है। पहले क्लियर कर दो ये दोनों में कंफ्यूजन क्या है। ये डेटा सिस्टम है और ये डेटर्स क्या है? डेटा सिस्टम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मानता है, इसलिए यह सिस्टम का नाम गिर गया डेटर सिस्टम। हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर मान रहा है, हेड ऑफिस इज कंसिडरिंग ब्रांच एज डेटर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स ऑफ गोवा और वाई ऑफ दुबई और जेड ऑफ हैदराबाद। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग ओनली बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर मान रहा है। फर्स्ट, ये जो डेटर्स हमने लिखे हैं यहां पे, दिस डेटर्स विच आई हैव हाईलाइटेड इन येलो, ये डेटर्स कौन से? जो ब्रांच ने एक्स वाई जेड को सेल किया है गुड्स और उनसे पैसे आने के बाकी है, ये वो डेटर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इनडायरेक्टली ब्रांच किसके पास से पैसा लेगा? ब्रांच एक्स वाई जेड से पैसा लेगा, और हेड ऑफिस फिर ये पैसा किसके पास से ले लेगा? ब्रांच के पास से। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लिंक? सो कस्टमर्स विल गिव टू ब्रांच एंड ब्रांच विल गिव टू हेड ऑफिस। In other words, I will say head office will recover from branch and branch is recovering from those customer. तो इसलिए मैंने वो डेटास यहां पे लिखे। तो ये डेटास कौन से? हमारे एग्जांपल के हिसाब से x, y, z, ये वो डेटास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वो डेटास है जिसको ब्रांच को पैसे देने हैं। सो ब्रांच हैज टू रिकवर फ्रॉम दीज पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. नाउ याद करो, ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा था आपको, हम यहाँ पे लिखते हैं, डेटा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे. तो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस. अगर ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं बाय बैलेंस क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस आई विल राइट व्हाट, बाय बैलेंस कैरेट डाउन. सो ओपनिंग बैलेंस सेम साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड. और जो भी अमाउंट्स है आप लिख दीजिए अमाउंट्स यहाँ पे, और ये अमाउंट्स जैसे ओपनिंग है वैसे ही ये अमाउंट्स यहाँ पे क्लोजिंग हो जाते हैं. आर यू क्लियर विद दिस? सेम कंसेप्ट आपने सिंगल एंट्री में भी यूज किया था, बट इन सिंगल एंट्री हमने क्या किया था, इन केस ऑफ सिंगल एंट्री हमने ये सब बाइफर्केशंस नहीं दिए थे, बट कंसेप्ट क्या था, ओपनिंग बैलेंस सेम साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब क्या होगा, जिस तरह से असेट्स होते हैं ओपनिंग बैलेंस में, उसी तरह से ब्रांच के पास कुछ लायबिलिटीज भी रहेगी. लेट्स से ब्रांच ने परचेस किया है गुड्स, तो ब्रांच के पास क्रेडिटर्स भी रहेंगे. ब्रांच के पास क्या रहेंगे, क्रेडिटर्स. जैसे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच, देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच जो अभी तक ब्रांच ने पे नहीं किए. देन इन दैट केस दिस विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड. अभी आप बोलोगे सर आपने तो कहा डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है तो आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? यस, आई एम राइटिंग दिस ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, डेटर्स मेरे को एडवांस देते हैं, कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए आपको, तो आप कौन से साइड पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे. सो सेम वे यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, मेरे को इन लोगों ने गुड सप्लाई कर दिया है, मेरे को इन लोगों ने सर्विस दे दी है, so I have to make the payment to them, therefore this will appear on the credit side. And again opening balance over here, तो इसका जो closing balance है वो यहाँ पे opposite side पे लिख देंगे हम. We'll write to balance carried down. So the first part was the opening balances and the closing balances. अभी समझो आपको याद नहीं रहता है कि स्टॉक कहां पे लिखो, यहां पे लिखो कि क्रेडिट साइड पे लिखो, वेयर शुड आई रिकॉर्ड स्टॉक. रिमेंबर, सपोज आप भूल जाते हो, बैलेंस शीट याद करो. बैलेंस शीट में जो भी आप असेट साइड पे लिखते हो वो सब डेबिट साइड पे आता है, जो भी लायबिलिटी साइड पे लिखते हो वो सब क्रेडिट साइड पे आएगा. और क्लोजिंग बैलेंस डायगोनली ऑपोजिट साइड, डायगोनली आ जाओ, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे तो यहाँ पे डेबिट साइड पे. सो दिस इज हाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंसेस. So what is the first two areas we have covered? We have covered opening and the closing balances. फिर third, what is the third thing that you have to record? The third thing that you record is goods sent to branch. Goods sent to branch. Ask yourself, सर ने हमको कहा है कुछ रूल्स याद रखो. Is this a transaction between head office and branch? What is your answer? Yes, it is a transaction between head office and branch. Who is sending goods to branch? Head office is sending goods to branch. So it is a transaction between head office and branch. Will it appear in this books of accounts? Yes. Few minutes back मैंने आपको क्या कहा था? Transactions between HO and branch, transactions between branch and HO, and transaction between HO and outsiders with respect to branch. So ask yourself, goods sent to branch, कौन भेजेगा goods branch को? Head office will supply goods to branch. So it's a transaction started from HO and ending at branch. So it will appear in the books of accounts. तो हम यहाँ पे लिखेंगे to goods sent to branch. Understood this? Now, goods किसने भेजे? Head office ने. Head office ने किसको भेजे? Branch को. Head office is supplying goods to branch. Then कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफर्स होते हैं. दो तीन ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच ने गोवा ब्रांच को भेज दिया, दिल्ली ने दुबई ब्रांच को भेज दिया. सो व्हेन इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, ब्रांच टू ब्रांच, even that gets accounted. But again at BCom level such questions to be asked are less. But एक याद रखना, अगर दो ब्रांच के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी हमको यहाँ पे ही लिखना है. So to goods sent to branch, all the transactions between HO and branch will be appearing. Now we'll say sir ये तो दो ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शंस है तो ये क्यों आपने लिखा?
whenever the transactions are between two branch, भले फिजिकली गुड्स डायरेक्ट डिलीवरी हो रहा है, गोवा से लेट्स से हैदराबाद चला गया गुड्स, बट अकाउंटिंग जब होती है इट विल ऑलवेज बी रूटेड थ्रू हेड ऑफिस. लेट्स से गोवा ब्रांच ने हैदराबाद ब्रांच को 5 लाख के गुड्स दे दिए. गोवा इज गिविंग गुड्स ऑफ 5 लाख टू हैदराबाद. गुड्स डायरेक्टली चला जाएगा, लॉरी से डायरेक्टली चला जाएगा गोवा टू हैदराबाद. बट अकाउंटिंग कैसे होगा? गोवा ने किसको दिया? मुंबई ब्रांच को. और फिर गोवा ने किसको दिया? मुंबई हेड ऑफिस को. और हेड ऑफिस ने किसको दिया? हेड ऑफिस ने उसको सप्लाई किया हैदराबाद को. अकाउंटिंग विल गो इन दिस मैनर. How the accounting will take place? Goa is giving to Mumbai head office, and head office is giving this to whom? Head office is giving this to Hyderabad branch. Physical inventory direct चला जाएगा. Inventory बॉम्बे से वापस हैदराबाद नहीं जाएगा, गोवा से सीधा हैदराबाद चला जाएगा. बट अकाउंटिंग कौन से स्टाइल में होता है? Goa is giving to head office, and then head office is giving to Hyderabad. This is how the accounting will take place. Then after that, goods returned by branch. जब ब्रांच ने रिटर्न गुड्स कर दिए, so this is a transaction between who? This is a transaction between branch and HO. Branch is returning back to HO, so even this will be accounted in the books of accounts. जब गुड्स सप्लाई करते हैं तब हमने यहां पे लिखा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जब ये गुड्स रिटर्न आ जाते हैं, रिमेंबर वी विल जस्ट रिकॉर्ड दिस ऑन द ऑपोजिट साइड. हमने यहां पे लिख दिया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. सेम वर्डिंग्स यूज करेंगे, लेकिन यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस. दैट्स ऑल. जो भी अमाउंट्स है हम अमाउंट्स यहां पे लिख देंगे. रिकॉर्ड द अमाउंट्स ओवर हियर. चेक, इजी वे टू रिमेंबर. गुड्स आया तो यहां पे लिखा, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो यहां पे लिख दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसाइनमेंट में भी हमने गुड्स क्या लिखा था? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. यहाँ पे ब्रांच को भेजा है मैंने गुड्स, एजेंट के जगह ब्रांच को दिया है मैंने गुड्स, तो क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. कंसाइनमेंट में लिखा था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे लिख दिया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. और रिटर्न आ गया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पे. नाउ जस्ट आई विल टेक 1 मिनट. सेल्स का एंट्री क्या है? क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर्स अकाउंट डेबिट. तो यहाँ पे ब्रांच को मैं डेटर मानता हूं, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट. तो ब्रांच के कौन सा साइड पे लिखा है मैंने? ब्रांच के डेबिट साइड पे लिखा है टू. बट आई कैन नॉट राइट सेल्स, आई विल यूज द वर्ड गुड्स सेंट टू ब्रांच. मैं ब्रांच को सेल नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रहा हूं. सो आई विल यूज द वर्ड गुड्स सेंट टू ब्रांच. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट इंस्टेड ऑफ सेल्स आई एम यूजिंग द वर्ड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ब्रांच ने रिटर्न कर दिया. व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, मतलब सेल्स रिटर्न टू ब्रांच. बट सेल्स रिटर्न वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ब्रांच को मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ब्रांच को मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं. तो सेल्स रिटर्न की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? वर्ड गुड्स सेंट टू ब्रांच. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न की जगह लिखूंगा गुड्स सेंट टू ब्रांच. एंड क्रेडिट में कौन है मेरा डेटर? ब्रांच. तो ब्रांच को मैंने क्रेडिट कर दिया है तो क्रेडिट साइड पे आ गया. सेम कंसेप्ट आई एम यूजिंग. थोड़ा मॉडिफिकेशन है बिकॉज इट इज अ ब्रांच अकाउंट्स, अदरवाइज सिस्टम्स आर रिमेनिंग सेम. फंडामेंटल्स क्लियर कर देना आपके, बहुत इजी गिरेगा. नेक्स्ट, जिस तरह से गुड्स सप्लाई कर रहे हो उसी तरह से अभी कैश भी दे रहा हूं मैं. एचओ ब्रांच को कैश दे रहा है एक्सपेंसेस के लिए, या फिर हेड ऑफिस इज डायरेक्टली मेकिंग सैलरी पेमेंट टू ब्रांच के स्टाफ को, और हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए ब्रांच के. सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड आउटसाइडर्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच. So head office is giving cash. So think from head office point of view. From HO point of view, cash is going out to cash. Is it head office expense? No, it is the expense of the branch. Who is getting the benefit of this? The branch. Debit the receiver. Entry will become branch account debit to cash. पैसा खर्चा हुआ, yes, to cash. किसके लिए खर्चा हुआ? ब्रांच के लिए. तो लिखो branch account debit to cash. So branch account के डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा मैं to cash. क्यों लिखा टू कैश? बिकॉज देयर में बी रेमिटेंस, देयर में बी मनी रिक्वायर्ड एट ब्रांच. ब्रांच को भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ब्रांच को भी पैसा चाहिए. ब्रांच को पैसा कौन देगा? हेड ऑफिस. जैसे मान लीजिए यू आर स्टूडेंट, योर पेरेंट्स आर देयर, पेरेंट्स आर हेड ऑफिस, यू आर ब्रांच. आपको पैसे कौन देता है?
हेड ऑफिस देती है पैसे आपको। सेम यहाँ पे ब्रांच को पैसे कौन देगा? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को लिखना तो पड़ेगा ना, मैंने इतना पैसा ब्रांच को दिया। सो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा गया टू कैश, पैसा गया टू कैश, किसको दिया? ब्रांच को। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश। उसके ऊपर गुड्स लिखा है मैंने, ब्रांच को क्या दिया? गुड्स। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स दिया तो गुड्स लिखो, कैश दिया तो कैश लिखो। नाउ रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच, खर्चे के लिए पैसे दिए। फिर कभी कभी क्या होता है, हेड ऑफिस ने ब्रांच के एम्प्लॉइज का सैलरी पे कर दिया। हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच के एम्प्लॉइज का सैलरी पे कर देता है। सो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड द स्टाफ ऑफ ब्रांच। एचओ एंड ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शंस नहीं है, एचओ एंड ब्रांच के स्टाफ के बीच में ट्रांजैक्शन है। बट ये जो ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है बिटवीन एचओ एंड आउटसाइडर, इट इज विद रिस्पेक्ट टू whom? इट इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच। सो इवन दिस विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो भी ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में हो रहा है, ब्रांच एंड एचओ के बीच में हो रहा है, एंड एचओ एंड आउटसाइडर्स बट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच शुड बी अकाउंटेड। सो वी विल हैव टू अकाउंट ओवर हियर पेड बाय हेड ऑफिस टू branch. What are they paying? They are paying expenses. So even this will be recorded. Expenses paid by HO to branch. तो ये सब हमको लिखना है। Then branch ने सेल किए गुड्स, expenses paid by head office, cash bank given by head office to branch for expenses. So we first covered opening and closing balances. Goods sent to branch, goods returned to branch. फिर कैश पे आ गए हमने। Then we are coming on cash. Fifth point, expenses paid by head office, expenses paid by head office, cash bank given by head office to branch. So head office ने किसको पैसे दे दिए? ब्रांच को। क्यों पैसे दिए? स्पेंड करने के लिए। Then cash remitted by branch to HO. अब क्या हो रहा है? ब्रांच ने सेल्स किए, ब्रांच को पैसा मिला, और ब्रांच ये पैसा किसको देगा? ब्रांच ये पैसा हेड ऑफिस को देगा। थिंक फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, हेड ऑफिस इज रिसीविंग कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट। हु इज गिविंग? ब्रांच। सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है? ब्रांच पैसे दे रहा है। ब्रांच के पास पैसे कहां से आए? ब्रांच गुड सेल कर रहा है, सेल करके पैसे मिल रहे हैं ब्रांच को, ब्रांच को पैसे किसको दे रहा है? हेड ऑफिस। यू आर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को पैसा मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया पैसा? ब्रांच। क्रेडिट द गिवर। तो ब्रांच के कौन सा साइड पे लिख रहा हूं मैं? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट। व्हाट विल आई राइट? बाय कैश अकाउंट। अभी यहां पे कौन किसको पैसे दे रहा है? यहां पे इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इट इज रेमिटेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने किसको पैसे दिए? ये ब्रांच ने ये पैसे हेड ऑफिस को दिए। ब्रांच इज गिविंग दिस मनी टू हेड ऑफिस। इफ इट इज बैंक, instead of cash we'll say bank. So that's the only thing. If it is bank transaction, you have to just account it as bank. Then cash remitted by branch debtors to HO. डेटर्स ने डायरेक्ट पैसे दे दिए। मैंने गोवा का एग्जांपल बताया, दिल्ली ब्रांच ने गोवा के कस्टमर को सेल किया गुड्स, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे किसको दे दिए? कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे हेड ऑफिस को दे दिए। सो इवन दिस विल अपीयर ओवर हियर, रेमिटेड बाय ब्रांच। ब्रांच का कौन था? वो ब्रांच का डेटर था। रेमिटेड बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस। सो पैसे किसने दिए? ब्रांच के डेटर्स ने। किसको दिए? हेड ऑफिस को। सो ट्रांजैक्शन इज बिटवीन आउटसाइडर्स एंड हेड ऑफिस, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ये चार चीज क्लियर। ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया तो टू गुड्स लिखो, कैश दिया तो कैश लिखो। ब्रांच ने रिटर्न किया गुड्स तो यहां पे लिखो, ब्रांच ने कैश दिया तो यहां पे लिखो। That's all in this. Little intricacies will come that we will handle, but this is the fundamental over here. अब हम क्या करेंगे? ब्रांच का अकाउंट क्लोज करेंगे। ब्रांच का अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, या फिर डेबिट साइड पे मिलेगा या फिर क्रेडिट साइड पे मिलेगा। और अगर डेबिट साइड पे मिलता है तो ये क्या हो गया? ये आपका हो जाता है प्रॉफिट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट्स।
transferred to profit and loss account. I'll just write P&L account. ये क्या होता है? ये हो जाता है प्रॉफिट. एंड सपोज इफ इट इज अ केस ऑफ लॉस, तो यहां की जगह यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट में? आई विल राइट लॉस. दैट्स ऑल. सो दिस विल बी योर बैलेंसिंग अमाउंट. आइदर यू विल गेट दिस और यू विल गेट दिस. दोनों नहीं हो सकता, या फिर प्रॉफिट है या फिर लॉस है. दिस इज द फॉर्मेट. Question answer sessions we'll do very soon after the first sum, or even if you have question answers, I'll just do after the sum is over. Once the sum is over, you'll get a much better idea. So what are we doing over here? If you observe carefully, opening balance यहाँ पे लिखा, closing balance यहाँ पे लिखा, opening यहाँ पे लिखा, closing यहाँ पे लिखा. चार चीजें हो गई. Goods head office ने supply किया, head office को return आया. Cash head office ने कैश दिया, हेड ऑफिस को कैश रिटर्न आया. फिर आपको बैलेंस आएगा, either this or this, which is your profit or loss, and the totals will appear over here. Either you will get profits or you will get it as loss. Is the format clear? आपको एक आइडिया आ गई फॉर्मेट की. चलो इसके बाद I'll be doing sum number 1 in 1 minute. Now let's start with the question. Here before I start this question, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस से भी कवर किया है और इनवॉइस प्राइस से भी कवर किया है. सो दिस सम ओनली आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन द सेम थिंग इज डन बट एट इनवॉइस प्राइस. तब हमको क्या करना है? सो नाउ आई विल स्टार्ट द सम विथ द कॉस्ट प्राइस. At the end, if you see, when the goods are shown at cost price, when the goods are shown at invoice price. So today I'll be doing the cost price part with you. Now, let's see the question. Raj and Company of Mumbai have a branch at Goa. Head office, that is Raj and Company, supplies goods to branch at invoice price. No doubt, invoice price का accounting मैं आपसे कराऊंगा आपको, बट नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा. आज सिर्फ हम कॉस्ट प्राइस की अकाउंटिंग करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है, अगर कॉस्ट प्राइस है तो क्या, इनवॉइस प्राइस है तो क्या. सो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको बहुत इजी पड़े कि हाँ कॉस्ट प्राइस है तो मेरे को ये लिखना है, इनवॉइस प्राइस है तो ये लिखना है. फाइनल आंसर मेरे सेम ही रहेंगे. तो जस्ट आपको कंपैरिजन अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया है. मैंने क्वेश्चन को इनवॉइस प्राइस पे लिया, बट इसको हम कॉस्ट प्राइस पे भी कन्वर्ट कर देंगे. सो डोंट वरी. For your easy understanding, I have taken this question for cost price as well as for invoice price. So later on, you get the clear idea how the system actually moves. Now, Raj and Company of Mumbai have a branch at Goa. Head office supplies goods to branch at invoice price. Invoice price is cost plus 25%. हमको क्या बोला है? Invoice price is cost plus 25%. Okay. जब invoice price is कॉस्ट प्लस 25%, आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऐसे कुछ पढ़ा था स्कूल डेज से. बस हमको वही करना है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. इनवॉइस प्राइस प्रिज्यूम इट इज एज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है? जो भी कॉस्ट है उसमें आप 25% ऐड कर दीजिए. कॉस्ट प्लस 25%, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, इनवॉइस प्राइस. तो अगर कोई चीज आप 100 रुपीज को खरीदते हो, कॉस्ट इज 100, कॉस्ट इज हाउ मच? कॉस्ट इज 100. तो उसमें आप प्रॉफिट कितना ऐड करोगे? प्रॉफिट 25 ऐड करोगे. तो 100 प्लस 25, कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25. तो 100 प्लस 25 विल गिव यू व्हाट? 125. सी, आपको कॉस्ट कितना दिया है? कॉस्ट प्रॉफिट गिव्स मी आईपी. आईपी इज योर इनवॉइस प्राइस. अगर कोई कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? इनवॉइस प्राइस हो गई आपकी 125. सो व्हाट इज योर इनवॉइस प्राइस? योर इनवॉइस प्राइस हैज बिकम हाउ मच? योर इनवॉइस प्राइस हैज बिकम 125. मतलब कोई भी चीज आप 100 को खरीदते हो तो आपने उस पे इनवॉइसिंग कितने का कर दिया है? 125. अभी आप प्रपोर्शन लो, प्रपोर्शन प्रॉफिट 100 का अगर मैं 1/4 पार्ट करता हूं, 1/4 ऑफ 100 विल गिव मी 25. 1/4, 1/4 into 100 will give me 25. So जब मैं प्रॉफिट बोलता हूं, प्रॉफिट
When I speak about profit, can I say profit is, ये 25 रुपए आपको कैसे मिलता है? How do you get this 25? जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट उसके 4 पार्ट्स कीजिए, 1/4. सो कॉस्ट का 1/4 है मेरा प्रॉफिट, 25%. 25% हर 100 में 25 रुपया, दैट इज 1/4. Are you understanding this? 1/4, 1/4. So if I apply 1/4 on 100, if I apply 1/4 on what? If I apply 1/4 on 100, I will get what? I will get 25. So मेरा प्रॉफिट क्या है? मेरा प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस है. तो अभी आप बताइए मेरे को, यू टेल मी, अगर मैं इनवॉइस प्राइस का बोलता हूं तो इनवॉइस प्राइस का कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रोपोर्शन है प्रॉफिट? जैसे 1/3, 1/4. तो इनवॉइस प्राइस का क्या रहेगा? इनवॉइस प्राइस का 1/5 रहेगा. 125 इंटू 1/5 कीजिए तो आपको 25 आएगा. सो हाउ डू यू गेट दिस 25? अगर 100 पे कैलकुलेट करोगे तो 1/4 कीजिए, और अगर इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो 1/5 कीजिए. सो प्रॉफिट इज हाउ मच? प्रॉफिट इज, आई कैन से प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस और इट इज 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस. ये सिर्फ याद रखना, ये बेसिक फंडामेंटल्स है. 11th स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ाई क्या है तो जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना. So if I say profit, how much is profit? Profit is, my profit is 1/4 of cost and 1/5 of invoice price. Just remember this. Another equation I'll write. अगर invoice price, cost price, अगर किसी चीज का invoice price 125 है तो उसका cost price कितना है? उसका cost price है 100. This is what we have derived from the equation. तो ये equation से मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर इनवॉइस प्राइस 125 है तो कॉस्ट प्राइस 100. हमारा मेथड कौन सा है यहाँ पे? वी आर मेंटेनिंग बुक्स एट व्हाट प्राइस? वी आर मेंटेनिंग गुड्स एट कॉस्ट प्राइस. तो गुड्स हमने कौन से प्राइस पे लिखा है? कॉस्ट प्राइस. लेकिन क्वेश्चन आपको कौन सा प्राइस दे रहा है? क्वेश्चन आपको दे रहा है यहाँ पे इनवॉइस प्राइस. तो मेरे को हर एक इनवॉइस प्राइस को कौन से प्राइस पे कन्वर्ट करना है? हर एक इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई विल कन्वर्ट इनवॉइस प्राइस to cost price. Now tell me, this is when the goods are maintained at cost price. So Mumbai branch account at cost price. Now let's see the first part. Head office paid all the expenses of the branch. So जितने भी expenses है कौन पे कर रहा है? Head office. किसको पे कर रहा है? Outsiders को या branch को? जो भी expenses है head office पे करेगा. Now बैलेंसेस चेक करो, उन्होंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, बट स्टॉक का बैलेंस कौन से प्राइस पे दिया है? इनवॉइस प्राइस. सो विल कन्वर्ट दिस टू व्हिच प्राइस? विल कन्वर्ट दिस टू कॉस्ट प्राइस. तो सबसे पहले हम बैलेंस लिख देते हैं. बैलेंस ब्रॉट डाउन. दे हैव गिवन यू द बैलेंसेस. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिख देंगे बैलेंसेस. कौन सा बैलेंस दिया है आपको? जस्ट चेक विच बैलेंसेस हैव दे गिवन यू. स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश. ओके, जो दिया है वो लिखिए आप. स्टॉक दिया है, स्टॉक लिखिए. डेटर्स दिया है, डेटर्स लिखिए. पेटी कैश दिया है तो पेटी कैश लिखिए. वॉट एवर दे आर गिविंग यू राइट दैट. नाउ टेल मी, स्टॉक कितना दिया है आपको? स्टॉक दिया है 12,500, बट इनवॉइस प्राइस तो हम इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे. इनवॉइस प्राइस 12,500 है तो कॉस्ट प्राइस कितना? टेल मी. क्रॉस मल्टीप्लाई. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, when you will do the cross multiplication, you will easily get the answer. Just imagine 125 is 100. 125 के पीछे 2 जीरो लगा दिए तो यहाँ पे क्या अमाउंट आना चाहिए? When you cross multiply, you will get the answer as 10,000. When you cross multiply, आपको क्या आंसर आएगा? आपको आंसर आएगा 10,000. तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, but this stock is at which price? At cost price. जब मैं इनवॉइस प्राइस मेथड से आपको अकाउंटिंग कराऊंगा तब हम 12,500 लिखेंगे. तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है वहां पे. Here we are maintaining goods at cost price. The books are maintained at cost price. So I write cost price 10,000. Then और क्या क्या बैलेंस में था? डेटर्स 2200 तो राइट डेटर्स as it is 2200. पेटी कैश, how much was petty cash? 350 तो राइट पेटी कैश as 350. चेक. ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया आपने. जैसे ओपनिंग बैलेंसेस है वैसे क्या रहेगा? वैसे क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपको दिया है उन्होंने. चेक करो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे दिए है. तो क्लोजिंग बैलेंसेस भी हम ये तीनों चीज के लिख देंगे. विल राइट क्लोजिंग बैलेंसेस. व्हेन आई राइट क्लोजिंग बैलेंस आई राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यही 3 चीज लिखनी है मुझे. ये 3 चीज लिख दीजिए.
बट अगेन द सेम स्टोरी, स्टॉक इज एट विच प्राइस, इनवॉइस प्राइस 7,500। तो आपको क्या करना है, ये 7,500 का क्या करना है, 7,500 का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम बना देते हैं 7,500। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, आपको आंसर आ जाएगा 6,000। What will be the answer? The answer will be 6,000. When you simplify this, you get 6,000. तो आपका स्टॉक कौन से प्राइस पे आ गया यहाँ पे, 6,000. What is 6,000? Cost price. Sir, why are you writing cost price? Because the method says you have to show goods at cost price. Okay. Then debtors 2,400 and petty cash was 525. 2,400 525. मैं क्या कर रहा हूँ, fill in the blanks कर रहा हूँ. अगर फॉर्मेट आ गया आपको तो बस आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। सो ओपनिंग बैलेंस सेम साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड, सेम फंडामेंटल मैंने यूज किया है। अगर लायबिलिटीज होती तो यहाँ पे लिखता ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, बट दे हैव नॉट गिवन मी एनी लायबिलिटीज। देन लेट्स सी, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इज इट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच? यस, सो इट विल अपीयर। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने का गुड्स सेंट टू ब्रांच हुआ है चेक कीजिए, बताइए मुझको कितने का गुड्स भेजा है आपने, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 50,000। ओके, आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस टू विच प्राइस, आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस टू कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा 50,000। If I write 50,000 over here, so how much will be this? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50,000 into 100 डिवाइड बाय 125, you will get the answer as 40,000. So goods sent to branch कितने हैं, 40,000. ओपनिंग बैलेंस का भी हम टोटल कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस का टोटल ये भी हो गया, और कुछ बैलेंसेस नहीं है हमारे पास। यहाँ का भी हम टोटल कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, there is nothing else, so we can just total it up. What are you doing? फॉर्मेट के हिसाब से लिखो बस, दैट्स ऑल। कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर कर दो, फिर ये सिस्टम एक बार समझ दिया आपको, देन इट इज डैम सिंपल, देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। देन नेक्स्ट, रेमिटेंस मेड, सॉरी, एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस। अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे किए, सर किधर लिखा है, आगे देखिए, ऊपर देखिए क्या लिखा था, हेड ऑफिस पेड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने ये एक्सपेंसेस पे किए ब्रांच के, so is it a transaction between head office and outsiders with respect to branch? Yes, so we'll have to account for this. तो आपको लिखना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, to cash bank account or to bank account. Which expenses they are paying? Check, they are paying rent, wages, salaries. So I will write rent, wages and salaries. What is the amount? Just check, what is the amount of rent, wages and salaries? Rent is how much? Rent is 1,600. So I will write 1,600. How much is wages? Wages is 1,200. I'll just take it down. And how much is salaries? Salaries is 3,000. And finally, I'll total it up. These three, I total it up. I get 5,800. That's all. I am following the format. I am not doing anything new. Remittance made to head office. Remittance. अभी ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच ने गुड्स सेल किए, सेल करके पैसे मिले, वो पैसे ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को दे देगा। कैश सेल्स के कितने मिले, 4,000, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितने मिले, 45,000। ओके, सो वी विल रिकॉर्ड दिस ऑन दी ऑपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक। व्हाट विल रिकॉर्ड बाय बैंक, विल रिकॉर्ड बाय बैंक, we will record by bank for what, we will record by bank for the remittances made out of, remittance out of what, remittance out of cash sales, and which other remittance was there, cash collected from customers, that is debtors। check कीजिए कितने पैसे मिले थे, cash sales के 4,000 and collection from customers 45,000। so 4,000 cash sales के मिल गए, 45,000 collection from customers मिल गए, so total amount they received was 49,000। check कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ,
फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं किया, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ। फॉर्मेट क्लियर हो गया, ट्रस्ट मी आपको ये चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगेगा, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, रिमेंबर दिस, बट आई टेल यू जस्ट रिवाइज दिस वंस अगेन, यू विल नेवर फॉरगेट। बेसिक्स बहुत क्लियर रखिए आपका। देन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ओके, जब गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजे थे, एचओ सप्लाइड गुड्स टू ब्रांच, तब हमने यहां पे लिखे थे। अब क्या हो रहा है, गुड्स पसंद नहीं आए, गुड्स पसंद नहीं आए तो क्या होगा, गुड्स पसंद नहीं आए तो ये गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। हु इज रिटर्निंग, ब्रांच इज रिटर्निंग, तो ऑपोजिट साइड पे लिख दो। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिटर्न्स हो रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, ब्रांच रिटर्न्स गुड्स, ब्रांच ने किसको रिटर्न कर दिया गुड्स, ब्रांच रिटर्न गुड्स टू एचओ। चेक कीजिए, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए सबको सामने सामने रखा है। हेड ऑफिस ने गुड्स दिए तो यहां पे लिखा, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न आए तो यहां पे लिखा, हेड ऑफिस ने पैसे पे किए तो यहां पे लिखा, हेड ऑफिस को कलेक्शन मिला ब्रांच से तो ऑपोजिट साइड पे लिखा। ओपनिंग ईयर क्लोजिंग ईयर, ओपनिंग ईयर क्लोजिंग ईयर, दैट्स ऑल डन। अच्छा, we come back to this, we'll have to see what is the invoice price. Actually the goods were at invoice price, check कीजिए, invoice price 4000, okay, we'll have to find out the cost price, तो यहाँ पे 4000 लिखिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 3200, सो यहाँ पे लिख दीजिए 3200, that's all, just see what are you doing। एक सिस्टम है, पहले वो समझ लीजिए और फिर वो फॉलो कीजिए। Now is there any other transaction left? No, no other transaction left. Now what you will do, you will total up your accounts. So इसका टोटल कितना आ रहा है हमको, इसका टोटल आ गया 61,125। सेम टोटल मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे मेरे को 61,125 में से मैंने ये और ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दिए, मेरे को प्रॉफिट्स मिलता है 2775। और इस प्रॉफिट्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट टू नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। How much? 2775. Did you understand this sum? इसका सेकंड पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, 10 मिनट लगेंगे उसको करने, बट ये सम आप बहुत केयरफुली आज ही घर पे जाके प्रैक्टिस करना। अगर आपने आज प्रैक्टिस कर ली, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट सेशन आपको बहुत सिंपल लगेगा। सिर्फ मैं अमाउंट से थोड़ा मिसमैच मींस आगे पीछे करूंगा अमाउंट्स को, बाकी पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ना एज इट इज ही रहने दूंगा, अमाउंट्स को ही चेंज करूंगा। यही सब में मैं अमाउंट्स चेंज करके जाऊंगा और आपको पता चलेगा कि अरे सर ने तो सिर्फ अमाउंट चेंज किए, पूरे सिस्टम तो सेम ही है। I'm deliberately not starting with the next part of this sum, the next that is at invoice price, because I want you to go through this, study at home thoroughly, and then come for the next session, which will be very, very simple for you. I hope you understand the entire sum. So we have covered only the first part when the goods are shown at cost price. Now, we'll have a question answer session. Invoice price, how you calculate? Joel, invoice price was given to you in the question. We have not calculated the invoice price, check. They have already given us the invoice price. Okay. And they said it is, invoice price is what? Cost price plus 25%. Cost plus 25. So what I did, I took cost as 100, assumed amount, cost plus 25 will give me 125. So this is how I have calculated invoice price. So if something is costing me 100, to that I will add 25, I will get invoice as 125. You cross multiply this. See, I'll do the cross multiplication. 4,000 into 100 divided by 125. Check, when you simplify this, you get 3,200. Rohit, you get 3,200. Okay student, thank you very much. Have a good day.